Good morning, sir. Very good morning. So some 10 students have come. Let others join. Please switch on your videos, all of you. So in last class, we were discussing different aspects of drug receptor interaction, and we had defined certain terminologies. We had discussed what is affinity, what is efficacy, what is agonist, what is an antagonist, what is potency, and these preliminary terms we had defined. So we'll be discussing the action of drugs with respect to these terms. We have discussed that receptors are one of the most important targets for drug action. That is why drug receptor interaction we are studying, and for understanding the action or mechanism of any drug, we need to know how drugs are interacting with their receptors. And so in this series, we'll be discussing further. So we had in the last class we had defined what is an agonist and what is an antagonist. I think that is clear. So we had also discussed this particular drug receptor interaction, how after interacting with the receptor, a drug is acting as an agonist, and how a drug after attaching with the receptor, it is acting as an antagonist. So what was the difference between an agonist and antagonist we had discussed. At the same time, we had discussed there is a concept of partial agonist or partial antagonist, and we had described how it was working, how partially it is. So we had discussed that after attaching with the receptor, the drug after attaching with the receptor may be activated, and once the receptor is activated, there is a drug response, and drug we were defining, it was working as an agonist. It was a full response, it was a full agonist. It was a partial response, it was a partial agonist. And similarly, there was no response. We defined that it is working as an antagonist. And if antagonism is complete, if it is there is no response at all, then it was a full antagonist. And if there is some partial antagonism, maybe some 10-12% response is coming, we prefer to say it as partial antagonist in spite of partial agonist, because agonistic action was lesser and antagonistic action was more. Well, in that series, a new term came, that inverse agonist. We defined agonist, antagonist, partial antagonist. But there was a more term, it was inverse agonist. Inverse. So, what inverse agonist did? Inverse agonist, you can see that what it is. This one inverse agonist. So the response is, in case of full agonist, the affinity was 1, efficacy was also 1. In case of partial agonist, the affinity was 1, efficacy was it was somewhere between 0 to 1. And in case of antagonist, efficacy is affinity is 1 and efficacy is always 0. Okay. But in case of inverse agonist, affinity is 1, but efficacy is less than 1. It is minus 1 to 0. So if efficacy is minus, what this minus figure indicates? Minus figure indicates that the agonist is working in negative direction. And how to justify the mechanism of inverse agonist? So just to we'll be discussing with this particular hypothesis. Now what I had discussed, that
Agonist, after attaching with the receptor, it activates the receptor. Now there is a new concept. What it says that receptors receptors in the body. They are present in our body cells. They are present in the body. They remain in two states. First state is that of active state, and second state is that of inactive state. Receptor is present in both the states. It is in active state and also it is in inactive state. What the drug, if this L you can say if L is the drug ligand, or if L is the drug, both forms of receptors. Ra means receptor in active condition, Ri means receptor in inactive condition. Both states are there in the body. What is there? It is up to the drug to which class of receptor or to which state of receptor, active state or inactive state, the drug has to bind. If the drug is a full agonist, it will bind to the active side of the receptor only. Are you getting my point? The second and the modern concept which will justify the mechanism of action of full agonist, partial antagonist, pure antagonist, and inverse agonist, all the mechanisms can be justified with this hypothesis. What this hypothesis says that receptor, there are two states of any receptor. There are two states of any receptor. Any receptor remains in two states. One is in active state. We are saying it as RA, receptor in active state, and receptor is also in inactive state. RI. Okay. So both the states of the receptor are present in the body, and it is up to the drug. Now, once you have taken any drug or once any drug has been administered, if the drug is a full agonist, the drug will occupy only to the active state of the receptor, right? So if the drug is a full agonist, it is occupying only to the active side of the receptor. So drug L and Ra complex will be formed, and you can see over this graph, over the y-axis, we are showing the level of response. We are assigning some arbitrary units, 0, 50, 100, 150, 200, like that. So, and on the X scale, we are showing the log concentration of the drug. So once you are increasing the dose of the drug, there is increase in concentration, there is increase in response of the drug, and the response of the drug is increasing in this fashion. After a particular dose or concentration, there is no further increase in drug response. It is like this. We'll discuss these things. So this was the case of a full agonist. Why? Because the full agonist is binding only to the active side of the drug. These particular states of the receptor is vacant. The full agonist is not disturbing this one. That is why there is increase, there is maximum response of the drug. You can see this green line is having the maximum response. Whereas if the drug is a partial agonist, in case of partial agonist, this L is now a partial agonist. So if it is a partial agonist, it is binding more. You can see this black arrow is greater and this black arrow is smaller. So it is binding more to the active site and less to the inactive site. But partial agonist is binding to both states of the receptor, active and inactive. But the active site is bound more and inactive site is bound less. That is why there is partial increase in drug action.
it is not, this level has come down. So it is a partial increase in drug action. So partial agonist or partial antagonist, it binds to both these states of the receptor, and the in case of partial agonist, this active site of the receptor is bound more and inactive site of the receptor is bound less. You can draw one more line, partial antagonist. It is somewhere else. This line is that of a pure antagonist. There is no response. There is no increase in response. Response is remaining fixed. Even if you were increasing the dose, there is no increase in response. This is the case of a true competitive antagonist. Why? How it happens? In case of true competitive antagonist, if this L is representing a true antagonist binds equally to both forms of the receptor, both states of the receptor, active and inactive equally. So increase in response is equally compensated by decrease in response, and overall there is no response. In case of partial antagonist, you can say it will be slightly lesser than this one. Okay. So in case of inverse agonist is just opposite of full agonist. It is binding only to the inactive site of the receptor. It is not binding to the active site at all, and that is why there is a decrease in response. This red line. So what this hypothesis says that all these are hypotheses, and by whatever concept we can justify the mechanism of action of the drug, and time will come, these hypotheses will be proven, because in science, whatever we are studying, whatever we have found in the body, based on those we frame certain assumptions how it's working. We are saying that these are the things in the body. Oh, it might work in this way. So first of all, we frame some assumptions, and thereafter, once the assumptions are finalized, certain hypotheses are being formulated or given. During a course of time, if the hypothesis is true and it is proven, no any objection is coming, then it takes the form of a theory. Now all these things are hypotheses, and initially the activation of the receptor, it was a hypothesis. Now there are certain agents which are working as inverse agonists. That activation concept didn't work. Now this hypothesis came, and it says that receptors are in two states in the body, active and inactive. Whatever form, whatever state is being made functional, the overall drug action is based on that. So any person is having any doubt in the concept of drug receptor interaction and the how it's working, and what is the mechanism of how inverse agonist and full agonist they are working? So receptor जब inactive form में होगा तब भी वो response generate करेगा क्या? Response, negative response generate करेगा. It is in inactive form. What this तो सिर्फ partial agonist में भी response generate होना चाहिए opposite. हाँ, आपने ध्यान से नहीं सुना, फिर से मैं बताता हूँ. This partial agonist, what it says that partial agonist जो है receptor के दोनों स्टेट से बाइंड करेंगे, एक्टिव स्टेट एंड इनएक्टिव स्टेट बोथ. लेकिन ये वाला एरो देखो, ये रेड जो है, ये ब्लैक एरो बड़ा है, ये छोटा है. मतलब कहने का है कि एक्टिव स्टेट से ज्यादा कर रहा है. मान लो कि 60% एक्टिव स्टेट से कर रहा है, 40% इनएक्टिव से कर रहा है. तो 60 minus 40, 20. There will be 20% increase in drug action. It is not 100% increase in drug action. That is why it is working as a partial agonist. Partial agonist में inactive से भी bind कर रहा है, but active से ज्यादा कर रहा है. That is why overall there is increase in drug action. Whereas in case of true antagonist,
एक्टिव और इनएक्टिव ये दोनों देखो एरो इक्वल है, दोनों से इक्वली बाइंड करेगा, तो ओवरऑल कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इवन होगा तो ओवरऑल रिस्पॉन्स नहीं होगा। हाउएवर इनवर्स एगोनिस्ट में इधर वाला कोई लाइन नहीं है क्या? नहीं है, सिर्फ इस साइड में है। इस साइड में है तो अभी जितना नॉर्मल थ्रेशोल्ड नॉर्मल इतना है, इससे नेगेटिव होगा, नीचे आएगा, इससे नीचे आ रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट प्रूव्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनवर्स एगोनिस्ट। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो इनवर्स एगोनिस्ट के रूप में काम करते हैं, इनके एग्जांपल्स हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एंटागोनिस्ट के बारे में बता दिया था कि हाउ एंटागोनिस्ट की एफिकेसी जो है ऑलवेज एक ट्रू एंटागोनिस्ट की 0 होगी। और एंटागोनिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होगा कि रिसेप्टर्स के लिए, ये जो रिसेप्टर है इस रिसेप्टर के लिए एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को अगर Ca लिखते हैं और एक एगोनिस्ट को A लिखते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच में कंपटीशन हो गया। ये क्या करेगा, आकर के रिसेप्टर को बाइंड कर करके इसको काम नहीं करने देना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि इससे चाह रहा है कि नो रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल कोई रिस्पॉन्स नहीं हो, और इससे चाह रहा है कि रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो जिसकी ज्यादा डोज होगी, जिसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, वही रिसेप्टर को जाकर के ऑक्युपाई करेगा। तो रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय दीज टू। जिसकी ज्यादा कॉम्पिटिशन होगी वो ज्यादा काम करेगा। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होगा कि इट विल कॉम्पीट विद द एगोनिस्ट। लेकिन एक होगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, उसको एगोनिस्ट है या नहीं है कोई मतलब नहीं। अगर एंटागोनिस्ट आ गया तो ऑलवेज वही बाइंड करेगा, एगोनिस्ट का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो। तो हाउ इट हैपेंस, ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कैसे होता है? तो एक जो रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर का एक्टिव साइट होगा। इफ दिस इज द रिसेप्टर and if this is the active site, competitive antagonist will always bind to the active site of the drug, and drug or agonist is also binding to the active site. लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव यहाँ बाइंड ही नहीं करेगा, यहाँ तो आकर के एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव एक एलोस्टेरिक साइट, डिफरेंट साइट पे आके बाइंड कर रहा है। इस साइट पे ड्रग जो है या एगोनिस्ट नहीं बाइंड करता है, और इसको बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर के वो ब्लॉक कर देगा। तो जिसको एलोस्टेरिक इनहिबिशन आप एंजाइम में पढ़ते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट एक्शन में एलोस्टेरिक इनहिबिशन, उस टाइप का ये होगा, ठीक है। तो एंटागोनिज्म के बारे में और फिर डिटेल में बताएंगे, अभी फॉर द टाइम बिंग इतना पे होल्ड पे रखते हैं। अभी तक आपको बताया कि ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट, इन दो वर्ड्स ऑलमोस्ट सिनोनिम्स के रूप में यूज कर रहे हैं कि ड्रग एक्शन और ड्रग इफेक्ट, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। व्हाट इज ड्रग एक्शन? तो ड्रग एक्शन को देखें, इट इज द इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग विद द रिसेप्टर resulting in conformational change in the latter means receptor in case of agonist, or prevention of conformational change through exclusion of इसको ऐसे देखें, रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर के साथ ड्रग अगर बाइंड किया, तो ड्रग बाइंड करने के बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। This binding is called drug action. If the drug is binding to the receptor and it is causing some conformational change, this process is known as drug action. उसके बाद क्या होगा? What next? उसके बाद क्या होगा? Ultimate change in biological function brought about as a consequence of drug action through a series of intermediate steps is called as drug effect. Drug effect, drug action क्या है? Drug action was अगर ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड कर ले और इसमें कोई कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो और ये एक्टिवेट हो या इनएक्टिवेट हो या जो भी हो, up to this point it was called drug action. What was the action of the drug? The action of the drug was to bind to the receptor
and to act as either as agonist or antagonist. So this process was known as drug action. उसके कुछ टाइम के बाद ड्रग रिसेप्टर के बाद सेकंड मैसेंजर्स इससे लिंक्ड होते हैं, सेकंड मैसेंजर्स लिंक्ड होते हैं, अभी अब उनके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो एक्टिवेट होंगे और अल्टीमेटली रिसेप्टर मान लो कि वो हार्ट कार्डियक टिश्यू पे लोकेटेड है और कार्डियक हमने कैल्शियम का इंट्रावेनस इन्फ्यूजन लिया, वो कैल्शियम क्या आएगा कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट के मस्कुलर फाइबर्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ड्रग इफेक्ट इज फोर्सफुल सिस्टोल, जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द ड्रग इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज टू कॉन्ट्रैक्ट द कार्डियक मसल, but what is the action of the drug? Action of the drug is to bind to the sodium potassium ATPase receptor, और कहीं पे जो यहाँ पे है वो अपने कंसर्न रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना और उसको एक्टिवेट करना, ये ड्रग एक्शन है, बाइंडिंग तक ड्रग एक्शन है। लेकिन ओवरऑल फाइनल जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि इंक्रीज इन हार्ट रेट और डिक्रीज इन हार्ट रेट, दिस इज द ड्रग इफेक्ट। सो ड्रग इफेक्ट इज द अल्टीमेट थिंग, जो सबसे लास्ट में जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में जो चेंज हो रहा है, दैट इज द ड्रग इफेक्ट। और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो चल रहा है, कैसे बाइंड कर रहा है, दैट इज द ड्रग एक्शन। तो ये दोनों वर्ड्स थोड़े से अलग हैं, नॉर्मली हम बातचीत में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि ड्रग इफेक्ट ये है, बट दीज आर डिफरेंट। नाउ कमिंग नेक्स्ट, drug receptor interactions में how these receptors work, और ड्रग और रिसेप्टर के बीच में और कुछ होता है क्या? अभी तक हम लोगों ने ये बात किया कि ड्रग इज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, तो बाइंड कितने देर तक बाइंड रहेगा और उनके बीच में क्या कुछ केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्या? अगर वो ड्रग जो है वो 3 घंटे तक अपने रिसेप्टर को पे बाउंड कंडीशन में, तो what sort of binding is there? अब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, there are so many bonds like electrostatic bond, covalent bond, फिर other van der Waals bonds हैं, hydrogen bond है, या other bonds are there. So drug is a chemical moiety. This receptor is proteinous in nature. It is also a chemical moiety. दो के बीच में अगर interaction हो रहा है और अगर एक complex form हो रहा है, temporary complex हो या permanent complex हो, some sort of bonding is there, some sort of bonds are being formed. और वो bonds को अगर हम chemistry के point of view से देखें तो in biological system 4-5 type of bonds may be there. First जो है covalent bond हो सकता है, covalent bond is a very strong bond, और normally अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है तो एक सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल मॉइटी है जो अट्रैक्ट करके उसको वीकेन कर सकता है, बट दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। नॉर्मली ये नहीं टूटेगा जब तक कोई दूसरा इंटरैक्ट करके उस बॉन्ड को ब्रेक ना करे। तो अगर ड्रग रिसेप्टर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तब तो उसका अलग होना बहुत मुश्किल है। सो इट इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड इन केस ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। In case of chemistry, it may be different. अगर सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयंस के बीच में जो highly electrostatic bonds हैं, that is a different thing. Nobody is coming to dissociate it. But in case of drug receptor interaction in our physiological system, this covalent bond is one of the strongest bonds. जो out of, और अगर ये हो जाए तो फिर इसके बाद जो है ड्रग का डिसोसिएट होना लगभग में मुश्किल हो जाएगा। और बहुत कम ड्रग्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मोस्ट ड्रग्स डू नॉट फॉर्म दिस बॉन्ड, क्योंकि अगर बन गया तो फिर हटेगा नहीं, नॉर्मली नहीं हटेगा। Whereas the second बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ये जहाँ पे आयंस होंगे या जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड का स्कोप है, तो समटाइम्स इट इज मोर कॉमन बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड से ये ज्यादा फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफी ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस में है। बहुत सारे हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस में जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं या अदर van der Waals फोर्सेस हैं। तो ऑल दीज 5 sort of bonds are there in drug receptor interaction. यू नो आपको इन बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा पता है तो केमिस्ट्री ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कमिंग फॉरवर्ड, इससे आगे चलें
नाउ मैं स्क्रीन को वाइट कर रहा हूँ, कुछ डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। टिल डेट अभी तक ये हमने पढ़ा है कि और ये समझा है कि ड्रग अगर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और बाइंड होने के बाद अगर एक्टिवेट हो रहा है या एक्टिव स्टेट से ज्यादा बाउंड कर रहा है तो ड्रग इफेक्ट होगा। नाउ ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट वर्ड हम अलग अलग यूज कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों का मतलब समझ लिया है। ड्रग एक्शन अगर होता है और उसके बाद ड्रग इफेक्ट हो रहा है, और अगर ड्रग का हम डोज ज्यादा दें, अगर कोई टैबलेट है 500 मिलीग्राम टैबलेट का 2 टैबलेट खा लिया या 3 ले लिया, ज्यादा डोज में, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? तो एक कोरिलेशन है, इफ यू आर इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द ड्रग, द इफेक्ट और ड्रग एक्शन, जो ड्रग इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। सो इस चीज को आगे देखें, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है कि अगर किसी ड्रग का डोज आप ज्यादा लें तो रिस्पॉन्स भी ज्यादा होना चाहिए, या क्या होगा उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। कितना गुना बढ़ाएंगे तो ये कितना गुना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा, मतलब वो बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है ये 2 टाइप का डिवाइड किया गया है। अब 2 कॉन्सेप्ट हो सकता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है, अगेन मैं स्क्रीन को वाइट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लो, मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल है और मैं ही हूँ और मैं एक पर्टिकुलर ड्रग ले रहा हूँ और नींद कोई मान लो पेन किलर ले रहा हूँ, उसका एक 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमने, या ओवरऑल एक 10 मिलीग्राम का एक टैब 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट लिया और मेरे को पेन थोड़ा कम फील हुआ, लगा पूरा पेन नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर बोलता अच्छा ठीक है आप 750 मिलीग्राम का टैबलेट ले लीजिए। तो मैंने डोज बढ़ा दिया तो लगा कि हाँ पेन थोड़ा सा कम है, फिर भी हल्का। फिर डॉक्टर को मैंने बोला तो काम नहीं कर रहा, तो उसने बोला अच्छा डॉक्टर साहब आप 1 ग्राम का या 500 मिलीग्राम के 2 टैबलेट आप लिया करो। तो 500 मिलीग्राम पे जितना ड्रग रिस्पॉन्स था 750 पे बढ़ा, 1 ग्राम पे बढ़ा, बट कितना टाइम तक बढ़ा सकते हैं? हमें एक सेफ्टी कंसर्न भी देखना होगा कि बहुत ज्यादा डोज बढ़ाएंगे तो डोज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये तो एक सेफ्टी कंसर्न हमें देखना होगा कि कितना बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, ऐसा नहीं कि डोज आप बढ़ाते जाओ तो रेस्पॉन्स एन नंबर तक बढ़ेगा। एक तो एक इंडिविजुअल स्टडी है कि एक सिंगल इंडिविजुअल जैसे मेरे में एक पर्टिकुलर ड्रग को बढ़ाते जाए तो उसका डोज बढ़ते जाता है और एक सर्टेन टाइम तक क्या होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ग्रुप है, आप पूरे बैच का ग्रुप है, पूरे बैच में मान लो कि एक सेम एनाल्जेसिक ड्रग को हम देखें कि भाई डोज बढ़ाए तो कितना इफेक्ट बढ़ा, तो इंडिविजुअल हर किसी में अलग अलग हो सकता है। किसी में रेस्पॉन्स 10% इंक्रीज हो, किसी में 20% इंक्रीज हो। तो एक पॉपुलेशन बेसिस पे इन परसेंट इंक्रीज या जो ग्रेजुअल इंक्रीज है वो हम स्टडी उतना फाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक सिंगल इंडिविजुअल में स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ द ड्रग विथ रिलेशन टू इंक्रीज इन डोज एंड रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग जो है, डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप 2 टाइप का हो सकता है। एक तो एक सिंगल इंडिविजुअल में हम करें और एक ग्रुप में करें, पॉपुलेशन बेसिस पे करें। तो डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप 2 टाइप का है। पहला है, इसको बोलते हैं ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, और इसका जो कर्व है उसको ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व बोलेंगे। और सेकंड है क्वांटल डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है? एक इंडिविजुअल में है स्टडी। एक इंडिविजुअल में अगर 10 मिलीग्राम का डोज दिया तो कितना रिस्पॉन्स हुआ, 20 का दिया तो कितना हुआ, 40 बढ़ाया, 50 बढ़ाया, 100 बढ़ाया, 200 बढ़ाया, कितना ग्रेड हम डोज का डिफरेंट ग्रेड्स दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स में क्या इंक्रीज या क्या ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, दैट इज द ग्रेजुअल और ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। और ये क्वांटल डोज रेस्पॉन्स क्या? क्वांटल मींस फिक्स्ड। क्वांटल डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप एक पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, जैसे कि पूरी बैच में और हम हिप्नोटिक ड्रग दे रहे हैं या सिडेटिव ड्रग दे रहे हैं, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग दे रहे हैं जिससे नींद आनी चाहिए, डायजेपाम दिया और डायजेपाम का एक फिक्स डोज दिया पूरे में, तो रात में सोने के पहले ले लो, सारे लोग ले लो, बैच में 50 लोग हैं, 57 है, ऑल 57 को दिया।
सुबह में पूछा कितने लोगों को नींद आई, तो बोला हाथ उठाया, सर 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 आया, 40 लोगों को नींद आई, बाकी लोगों को नींद नहीं आई। तो हम परसेंटेज दिखाएंगे कितने परसेंट पॉपुलेशन में कितने परसेंट पे इफेक्ट हुआ, तो हम 40 आउट ऑफ 57 हम परसेंट कैलकुलेट करेंगे। बट एक फिक्स डोज दिया था सबको एक फिक्स डोज, अगर 100 मिलीग्राम का टैबलेट दिया तो सबको 100 मिलीग्राम दिया। तो जब पॉपुलेशन बेसिस पे स्टडी करेंगे तो डोज फिक्स करना होगा। अगर इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं पॉपुलेशन बेसिस पे, एट ए टाइम एक ही वेरिएबल हो सकता है, तो आप उनको अच्छे से उनके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। अगर ड्रग के डिफरेंट मल्टीपल डोजेज यूज करना है, उसका इफेक्ट देखना है, तो आप इंडिविजुअल पेशेंट में स्टडी करेंगे। अगर ड्रग का एक पॉपुलेशन बेसिस पे डोज, उसका डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप स्टडी करना है, तो एक एट ए टाइम एक फिक्स डोज पे दें। एक फिक्स डोज पे पूरे पॉपुलेशन में रिस्पॉन्स हुआ है नहीं, तो इस जो क्वांटल डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप है, इसको यस नो रिलेशनशिप में हम स्टडी करेंगे। हुआ या नहीं, असर हुआ या नहीं, हाँ सर हुआ, यस, नहीं हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ वो नहीं स्टडी कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन बेसिस पे जो है इट इज क्वांटल डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप को ऑल और नन रिलेशनशिप बोलते हैं, कि हुआ तो सब में हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, यस या नो। Whereas ये ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है ये ग्रेजुअल है। थोड़ा और इलैबोरेट देखें इसको। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का जो कर्व है, अब एक इंडिविजुअल ले लीजिए, सब भूल जाइए, एक इंडिविजुअल सेल्फ को खुद को प्रिज्यूम कीजिए, एक पर्टिकुलर ड्रग ले रहे हैं, जैसे एनाल्जेसिक मेडिसिन ले रहे हैं, और आपको काफी पेन है और आपने एक पर्टिकुलर डोज लिया, तो पेन का परसेप्शन थोड़ा कम हुआ, फिर डोज बढ़ाया और कम हुआ। इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हम ड्रग का डोज हम अरिथमेटिकल यूनिट, मतलब कि लीनियर स्केल पे 1 2 3 4 5 6, ये लीनियर स्केल पे इक्वल डिवीजन पे हम एक्स एक्सिस पे ड्रग का डोज हम प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस पे इसका रेस्पॉन्स जिस टाइप का ड्रग है, अगर डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर है या पेन परसेप्शन है, जो है उसके यूनिट में हम इसको रेस्पॉन्स वाई एक्सिस पे साइन करेंगे। तो जैसे जैसे डोज बढ़ाते हैं रेस्पॉन्स बढ़ रहा है, और डोज बढ़ाते जा रहे हैं तो इस तरीके से रेस्पॉन्स बढ़ता है, और धीरे 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 रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर डोज के बाद रेस्पॉन्स कितना भी डोज बढ़ाए रेस्पॉन्स फिक्स हो जाता है। यहाँ पे भी रेस्पॉन्स फिक्स है, और आगे भी दोगे तो आप फिक्स ही रहेगा। अब कितना भी देंगे तो रेस्पॉन्स नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मिनिमम डोज, इस पर्टिकुलर डोज को कहने का मतलब द मिनिमम डोज विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इफेक्ट। एक जो है ये मिनिमम डोज है, इसको बोलेंगे डी मैक्स बोलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम डोज है, इसको बोलेंगे सीलिंग डोज बोलेंगे। इट इज नोन एज सीलिंग डोज, कि वो डोज जिससे सीलिंग छत छू गया, मैक्सिमम रेस्पॉन्स आया, तो दिस डोज विल बी नोन एज सीलिंग डोज। तो इसमें दिस डोज विल बी नोन एज सीलिंग डोज, जो मैक्सिमम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, मिनिमम डोज विच प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम रेस्पॉन्स। इसमें यहाँ पे भी इस डोज पे भी मैक्सिमम रेस्पॉन्स है, बट यहाँ डोज ज्यादा हो गया है। इस पर्टिकुलर डोज पे भी मैक्सिमम सेम रेस्पॉन्स है, लेकिन सीलिंग डोज, ये सीलिंग डोज नहीं होगा, ये भी सीलिंग डोज नहीं होगा, ये सीलिंग डोज होगा, ठीक है। अब नाउ दिस ग्राफ वाज द, ये जो ग्राफ था इसमें एक्स वाई एक्सिस दोनों लीनियर स्केल है। लीनियर स्केल समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 लाइक दैट, अरिथमेटिकल यूनिट्स में है वो। लेकिन ये जो डोज का जो एक्स एक्सिस है, अगर लॉग डोज कर दें, लॉग मतलब कि इसको कर दें 10 to the power 0, 10 to the power 0 1 हुआ, इसको थोड़ा देर बाद कर दें, इसको 10 to the power 2 कर दें, 100 कर दें, इसको 10 to the power 3 कर दें, इसको लॉगरिथमिक स्केल बोलते हैं, लॉगरिथमिक स्केल, इसको 10 to the power 4 कर दें। अगर इस एक्स एक्सिस को या इवन किसी एक एक्सिस को, डोज वाला एक्सिस को लॉगरिथमिक स्केल में करें और इसको लीनियर स्केल पे करें, तो ये वाला सेम ग्राफ जो है इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन सी दिस वन, ये सिग्मॉइड हो जाता है। ये जो था हाइपरबोलिक कर्व था, हाइपरबोला जो है ये सिग्मॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
जस्ट मोमेंट। हाँ, this hyperbolic curve जो initially it was this hyperbolic curve, ये जो हाइपरबोलिक कर्व है, अगर एक्स एक्सिस को हम लॉग डोज पे करें, इसका हम यूनिट चेंज कर लें, तो दिस इट बिकम सिग्मॉइड, एस शेप सिग्मॉइड कर्व हो जाता है। और इस सिग्मॉइड कर्व का क्या ब्यूटी है, एक सर्टेन टाइम यहां से लेके यहां तक मान के चलें कि एकदम स्ट्रेट लाइन है। कर्व का इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन आप कहें कि इस पर्टिकुलर डोज पे रेस्पॉन्स सर इतना था, मान लो ये 5 था, और इस पर्टिकुलर डोज पे रेस्पॉन्स मान लो कि ये 7 है, और नेक्स्ट डोज इस पे ये लिखा हुआ है, मान लो कि ये 12 है, ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी कि 2 डोज पे 2 ग्राम के डोज पे 5 कॉन्सेंट्रेशन है, तो 4 ग्राम के डोज पे 12 है, और यहाँ पे 4। तो इसको अगर हमें एक रिलेशन पता करना हो तो इसके लिए क्या करना हो, इस लाइन का हमको मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना होगा। कर्व का मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, स्टडी करना मुश्किल होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन का tan थीटा हम लगा के बता सकते हैं इस एंगल कितना है, उससे हम इसके स्लोप को हम इक्वली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इसका डोज पे इतना है, तो यहाँ पे इसका कितना होगा और कितना गुना बढ़ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना इजी है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि अगर डोज बढ़ाते देते हैं तो रिस्पॉन्स कितना गुना बढ़ता है, लॉग डोज स्टडी, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस प्लॉट को बोलेंगे सेमी लॉग ग्राफ। सेमी लॉग मींस ओनली एक्स एक्सिस इज लॉगरिथमिक, वाई एक्सिस इज लीनियर। अगर एक्स और वाई दोनों लॉग होता तो इसको हम ट्रू लॉगरिथमिक स्केल बोलेंगे। ट्रू लॉग स्केल बहुत टफ होगा कैलकुलेट करना मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमको एक ही यूनिट का हमको लॉग स्केल निकालना है, ठीक है। तो इस ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का ये फायदा है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रेड्स का हम इस टाइप से स्टडी कर सकते हैं। इसके आगे चले हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का एक एग्जांपल आपको बताएं यहाँ पे। हाँ, इस ग्राफ को देखिए, एक पर्टिकुलर ड्रग है, एक पर्टिकुलर ड्रग इज द सेम, एक पर्टिकुलर डोज पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम स्टडी कर रहे हैं, और विल कम बैक टू यू। थोड़ा सा और पढ़ लें इधर। अब इस ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में अभी तक ये पढ़ा कि उसका सेंट्रल पोर्शन जो है स्ट्रेट लाइन हो जाता है। उस स्ट्रेट लाइन से जहां तक स्ट्रेट लाइन है वहां तक तो हम वर्कआउट कर सकते हैं। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में ये देखा कि जब तक हम डोज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इफेक्ट बढ़ रहा है, और एक सर्टेन टाइम के बाद इसका इफेक्ट बढ़ना बंद हो जाता है। उस पर्टिकुलर इफेक्ट को एक केस है, एक ड्रग है, यू टेक एनी ड्रग ए, इसके ड्रग के 2 कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं, उसको सोल्यूशन बनाते हैं। एक मान लिया कि फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन जो बनाते हैं वो है फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज, इसको कॉन्सेंट्रेशन C1 जो है वो मान लो कि 100 मिलीग्राम पर ml जो है कॉन्सेंट्रेशन बनाए। 1 ml में 100 मिलीग्राम डिसॉल्व किया, ठीक है। एक सेकंड कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं। मान लिया कि ये 500 मिलीग्राम
ऑफ द ड्रग जो है 1 ml में डिसॉल्व किया, ठीक है। और जो टेस्ट टिश्यू है जिसमें एक इंडिविजुअल में स्टडी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल में अगर हम इसको आइसोलेटेड ऑर्गन सिस्टम में भी स्टडी कर सकते हैं। जिस टेस्ट टिश्यू या मसल पे अगर एक्टिविटी करना है, मसल को कट करके एक आइसोलेटेड ऑर्गन बाथ सिस्टम में हम उसको माउंट करें और सेम टिश्यू का 2 रेप्लिका बनाएं, दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप करें। फर्स्ट वाले में हम C1 जो है 100 मिलीग्राम 100 mg पर ml का 1 ml डोज दिया है, उसको 1 ml एक्सपोज किया डोज। 1 ml में कितना, उसको 100 मिलीग्राम उसको ड्रग एक्सपोज हुआ, और सेकंड टिश्यू को में भी 1 ml दिया, लेकिन वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, 500 मिलीग्राम उसको है, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम उसको मिला है तो ज्यादा रिस्पॉन्स होगा। अब ये जो 2 ग्राफ है, कर्व है, मैं रेड लाइन से भी प्लॉट नहीं कर रहा हूं, फिर कंफ्यूजन होगी। ये दिस कर्व, ये जो फर्स्ट कर्व है, अभी ड्रग को C1 ड्रग को 100 मिलीग्राम 1 ml दिया है, ये एक पर्टिकुलर डोज दिया है। अभी कोई डोज नहीं दिया है, इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई रेस्पॉन्स नहीं है। दिस इज द थ्रेशोल्ड डोज, एक है थ्रेशोल्ड डोज। किसी एक मिनिमम अमाउंट में आपको डोज लेना होगा, उससे कम लेंगे तो कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि 5 है और 10 है, ये इफ इट इज 9, तो 9 एक थ्रेशोल्ड डोज है, उससे कम लेंगे तो कोई असर नहीं हो रहा। 9 के बाद अगर हम ले रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का कोई असर हो रहा है। तो this 9 is the threshold dose. What is the threshold dose? It is the minimum dose to produce any physiological or pharmacological response. ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का C1 कॉन्सेंट्रेशन का जो सोल्यूशन है, वो टेस्ट सोल्यूशन में हम उसका डोज बढ़ाने लगे। 1 ml दिया, फिर 2 ml दिया, फिर 3 ml दिया, फिर 4 ml दिया, ऐसे वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर डोज बढ़ाएंगे तो इसका रेस्पॉन्स भी ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन टाइम के बाद मैक्सिमम रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम रेस्पॉन्स जो है, ये कहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे है, ये है 40, मान लो ये 80 है, ये मान लो कि 47 है। 47 ml डोज दिया तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स आ रहा ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन, लोअर C1 कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। एक दूसरा केस है, सेम टेस्ट टिश्यू जो सेकंड रेप्लिका है, उसमें मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन C2 दिया, 500 मिलीग्राम पर ml वाला वो दिया। तो उसका थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे बताने में उल्टा हो गया। ये जो है वो ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड टिश्यू का है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। C2 का ग्राफ ये है, ठीक है, और C1 का ग्राफ ये है, ठीक है। तो C1 जो कि डाइल्यूटेड है ये, तो इसका C1 का थ्रेशोल्ड डोज मान लो 20-40 है, तो ये मान लो 22 है। तो C1 का थ्रेशोल्ड डोज है 22 और C2 का कॉन्सेंट्रेटेड का थ्रेशोल्ड डोज है 9। ऑब्वियसली मोर कॉन्सेंट्रेशन है, 9/40 ओवरऑल मिल रहा है, और ये 22 ही मिल रहा है। मतलब ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है इस वजह से। तो कहने का मतलब है कि अगर सेम ड्रग के 2 डिफरेंट डाइल्यूशंस यूज करें, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सेम टेस्ट टिश्यू में अप्लाई करें, सेम ड्रग अगर है, तो रेस्पॉन्स रिलेशनशिप जो कर्व है, जो कर्व जो का जो ये दोनों सिमिलर होगा, बट एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद होगा। ये देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो कि डिस्टेंस जितना इन दोनों के बीच में C2 और C1 का जो रेशियो है, इट इज 500 डिवाइडेड बाई 100 है। इस रेशियो के प्रोपोर्शन में ये डिस्टेंस होगा। अगर इसका थर्ड कॉन्सेंट्रेशन यूज करें, इसका थर्ड कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि C3 यूज करें, C3 जो है वो 1000 है, तो ये 1000 हो सकता है यहाँ पे इस टाइप से आए। तो आपका ये जो रेशियो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये 1000 डिवाइडेड बाई 100 का डिस्टेंस रेशियो में होगा। तो ये क्या, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से अपने को ये फायदा है कि अगर उसके मल्टीपल डाइल्यूशंस यूज करें
तो हर एक डाइल्यूशन का कर्व एक दूसरे से पैरेलल होगा। दिस कर्व इज पैरेलल टू दिस, इज पैरेलल टू दिस। अगर सेम ड्रग है, ड्रग अगर चेंज कर देंगे तो सबका स्लोप सेम हो, कोई जरूरी नहीं। अगर एक दूसरा ड्रग है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट ड्रग्स हैं, एक ड्रग ए है, एक ड्रग बी है। ये फर्स्ट दोनों कर्व को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ड्रग जो है का जो डोजिंग स्टार्ट किया, यहाँ के बाद वेरी स्टीप राइज इन इफेक्ट हुआ, यहाँ आने के बाद यहाँ मैक्सिमम रिस्पॉन्स हो गया। तो फर्स्ट का जो है वो ग्राफ स्टीप है, मोर वर्टिकल है। सेकंड बी ड्रग का रिस्पॉन्स धीरे धीरे रेज हो रहा है और इसका लेस स्टीपर ग्राफ है, ठीक है। तो जो ग्राफ का स्टीपनेस है या जो उसका इंक्लिनेशन है, ये जो अगर हम दिस एंगल अगर हम निकालें और यहाँ पे जो स्टीपनेस का जो एंगल निकालें, दिस एंगल इज मोर नियर टू वर्टिकल, दिस एंगल इज लेस। तो एंगल अगर ये ज्यादा जिसका होगा, मतलब कि उसका इंस्टेंटेनियस राइज इन ड्रग इफेक्ट होगा इफ वी आर इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द ड्रग। तो हम इन दो ड्रग को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ दोनों ड्रग का स्लोप अलग अलग है, दैट मीन्स दोनों ड्रग डिफरेंट है, सेम ड्रग नहीं है। अगर सेम ड्रग होता तो दोनों का स्लोप एग्जैक्टली पैरेलल होता है। यहाँ ये दोनों का स्लोप पैरेलल नहीं है, मतलब दो डिफरेंट ड्रग्स हैं। अब इसमें एक और चीज बताया गया है, पहले वाला ग्राफ में चले। इस ग्राफ में कुछ चीजें हैं कि इफ दिस इज द एक कॉन्सेप्ट है थेरेप्यूटिक डोज का। वन कॉन्सेप्ट इज देयर ऑफ थेरेप्यूटिक डोज, टीडी बोल सकते हैं थेरेप्यूटिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज क्या है, मैंने अभी बताया कि एक थ्रेशोल्ड डोज होगा, एक होगा थ्रेशोल्ड डोज। थ्रेशोल्ड डोज क्या हुआ, हु विल आंसर? व्हाट इज थ्रेशोल्ड डोज? यस सर, जिस मिनिमम डोज में पहला रिस्पॉन्स आता है। यस, मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं बोलेंगे, ऑलवेज वी विल से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। सो द मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एनी ड्रग इज थ्रेशोल्ड डोज। वन इज थेरेप्यूटिक डोज। व्हाट इज थेरेप्यूटिक मींस, कहने का मतलब है कि जो रिक्वायर्ड आपको थेरेप्यूटिक बेनिफिट चाहिए, कि हमको बहुत पेन हो रहा है, इतना होने के बाद अब आराम है, तो जितना रिक्वायर्ड आपको रिस्पॉन्स चाहिए, दैट इज द थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स यू आर डिजायरिंग। उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितना मिनिमम डोज लगेगा उसको हम थेरेप्यूटिक डोज बोलेंगे। अब देखें हर एक ड्रग का इस ग्राफ में देखें, एक हमें पता है कि इतना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है, और तो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए इफ दिस इज द लेवल ऑफ थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, इतना आपको चाहिए थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, मान लो 100%। ये मैनुअली ड्रॉन ग्राफ है, इसलिए एग्जैक्ट स्केल मैच नहीं कर रहा। और दोनों ग्राफ का देखें, दोनों ड्रग का देखें। फर्स्ट ड्रग का जो है, और ये यहाँ पे जो सेंटर है इस ग्राफ का, दिस इज द मिनिमम रिस्पॉन्स, दिस इज द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, सीलिंग इफेक्ट है, एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड इफेक्ट और थ्रेशोल्ड डोज है, और दिस इज द मीडियन डोज। ये जो है मीडियन या 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो डोज आपको चाहिए, जो डोज आपको रिक्वायर्ड लग रहा है, इट इज द मीडियन डोज। मीडियन डोज, मीडियन मीन्स 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो डोज लगेगा, इट विल बी कॉल्ड एज मीडियन या मीडियन डोज। नाउ कंसिडरिंग द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, हमको जितना थेरेप्यूटिक इफेक्ट मान लो 100% चाहिए, उसका 50% हमें थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स हमें इस डोज पे मिलता है, और 100% रिस्पॉन्स हमें इस डोज पे मिलता है, ठीक है। एक फर्स्ट ड्रग ए का जो है वो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स का ये कर्व था। ड्रग का एक लिमिट है, एक डोज हम बढ़ाते जाएं कंसीडरिंग द सेफ्टी पॉइंट। एक सर्टेन
टाइम के बाद, डोज बढ़ाने के बाद हो सकता है वो सेफ नहीं रहे, हमें लीवर डैमेज करे, कार्डियक प्रॉब्लम होने लगे, और डोज बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो लीथल डोज हो जाए, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ड्रग का जो टॉक्सिसिटी है वो डोज डिपेंडेंट है। एक लिमिट से ज्यादा डोज बढ़ाएंगे तो उसकी मैक्सिमम टॉक्सिसिटी हो सकता है या इवन डेथ भी हो सकता है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीथल डोज। एक डोज है जिसपे वो लीथल डेथ हो जाता है, और दैट डोज इज कॉल्ड लीथल डोज। अब यहाँ पे दिस थेरेपेटिक डोज, या इसको थेरेपेटिक डोज जो 50% थेरेपेटिक डोज, अब हम ये सारे डोजेज जो स्टडी कर रहे हैं वो पॉपुलेशन बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं कि मान लो कि आपके पूरे बैच में है और सबने स्पोर्ट्स खेला, चोट लगी, पेन हो रहा है, और एनाल्जेसिक टैबलेट हमने दिया कि ये एनाल्जेसिक टैबलेट आप 100 मिलीग्राम सब लो, तो कितने लोगों में पेन किलिंग हो रहा है? तो 100 मिलीग्राम में 50% पे मान लो कि जिस अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में एक 50% एक इंपॉर्टेंट फिगर, जो 50% क्रॉस कर गया उसके गवर्नमेंट फॉर्म हो गए, 50% आना होगा, 50% प्लस वोटर्स जिसको वोट कर लेंगे, बाकी पे भी जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो बाकियों पे भी राज करेगा। 50% एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब वो पर्टिकुलर डोज जिसमें पॉपुलेशन में सारे लोगों, आपके बैच में हर किसी का पेन दूर हो जाए, हो सकता है वो डोज एक का बहुत 10 ग्राम वाला डोज हो, उस पे हो सकता है हार्ट अटैक होने लगे, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो। तो 100% के चक्कर में नहीं रहेंगे, 50% बैच में जिसका पेन ठीक हो जाता है जिस डोज को, उस डोज को हम थेरेपेटिक डोज 50 मानेंगे, उसको बोलते हैं ED50, इफेक्टिव डोज 50, ED50। सो एक कॉन्सेप्ट आया ED50, इट इज द इफेक्टिव डोज 50। ये क्या हुआ? इट इज द डोज विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस effective dose or required therapeutic dose in 50% of the population। ठीक है, अब if ED50 मान लो इसका 100 मिलीग्राम टैबलेट जो है वो ED50 है इसका, ठीक है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, डेथ भी हो रहा है, तो पूछे कितना? तो एक है लीथल डोज, तो लीथल डोज, एब्सोल्यूट लीथल डोज 100 के चक्कर में नहीं पड़ेगा, लीथल डोज 50। क्या डोज है जिससे पॉपुलेशन में आधे लोगों की डेथ हो जाती है? मान लो कि ये जो है वो है 10,000 मिलीग्राम पर जो है पर केजी बॉडी वेट जो है, ये डोज रेट जो है, ये जो है लीथल डोज 50 है, LD50 है। ये 10,000 मिलीग्राम या 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा देंगे या इतना देंगे तो इस डोज पे आधे पॉपुलेशन में डेथ हो जाती है। ये सारे स्टडीज रैट्स में कर सकते हैं, रैट माइस में होता है। ड्रग का अलग अलग ग्रुप बनाया, रैट का 10-10 रैट का 10 ग्रुप बनाया, पहले वाला में ये डोज दिया, फिर बढ़ा के दिया, और हर किसी में ऑब्जर्व करते हैं कि पहले में कितना डेथ हुआ, दूसरे में कितना डेथ हुआ, तीसरे, उस हिसाब से लीथल डोज 50 कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली इस स्टडी में बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, और जो रैट में डेटा आता है उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं हायर एनिमल्स में कि रैट में भाई इतना है, और बहुत सारा फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और ह्यूमन बींग्स पे LD50, डायरेक्ट ह्यूमन बींग में तो LD50 कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो उस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डेटा को हम ऑब्जर्व करते हैं। LD50 जानने का पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम सेफर डोज कैलकुलेट कर सकें कि किस डोज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दो डोज है, इफेक्टिव डोज ED50 एंड LD50, लीथल डोज 50। ये दोनों के डेफिनेशन में किसी को डाउट है? ED50 एंड LD50। अब इस ग्राफ को देखिए, फर्स्ट में ड्रग ए और ड्रग बी में देखें हम कि कौन ज्यादा सेफ ड्रग है। अब ड्रग बी का जरा देखें, ड्रग बी का पहला वाला, ये वाला ग्राफ ड्रग बी का, और ये वाला, दोनों आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। ड्रग बी दोनों केस में पैरेलल है, तो पहला यहां से ड्रग बी बढ़ना शुरू हुआ, ऐसे 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 ऐसे,
इसको मैं 1 मिनट फिर इस ग्राफ में हाँ हाँ सर हम क्या बोले, ए है वो मोर पोटेंट है या फिर मोर हाँ एफिकेसी उसका ज्यादा है, क्या बोल सकते हैं इसमें? उस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने दिखाया, मैंने पहले बताया नहीं, मिटाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, एंड हो जाएगा शो। समझने की कोशिश करते हैं। बी ड्रग का दोनों ग्राफ देखिए, 1-2 मिनट में कंक्लूड करेंगे। बी ड्रग का देखें, एक पर्टिकुलर जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे आकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम डोज आ रहा है। दिस वाज द कॉन्सेंट्रेशन, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन, थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन पे हम ड्रग को दे रहे थे। यहाँ पे बी ड्रग का ग्राफ है जो लीथल कॉन्सेंट्रेशन पे दे रहे हैं, जिसपे डेथ होती है बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। इसका ग्राफ इस टाइप से है। कहने का मतलब इसमें है कि बी ड्रग का वो डोज जिसपे 100% थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है, उस डोज को, वो डोज क्या है, वो डोज इतना है, मान लो 40 है, ये 35 है मान लो कि, और 35 डोज इस पर्टिकुलर डोज पे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेता है, मतलब कि यहाँ 20% मानो, यहाँ पे 20% पॉपुलेशन में डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि इस ड्रग का जो है वो सेफ्टी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इस ड्रग का 100% बेनिफिट लेने के चक्कर में हम डोज ड्रग का बढ़ाए तो 20% पॉपुलेशन में डेथ हो रही है, यहाँ पे देख रहा हो ना। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता, ये ग्राफ अगर यहाँ पे होता ऐसे, तो 100% लेते तो 1 भी % डेथ नहीं होती। तो व्हाट दिस गैप इंडिकेट्स, अगर ये गैप जितना ज्यादा होगा ड्रग उतना सेफ होगा। तो लीथल डोज, ये दोनों गैप, अब दोनों का 50% ले रहे हैं, इसका ये 50 डोज और ये 50 डोज, दोनों का रेशियो। सो एक क्लास और बताएंगे, LD50 बाई ED50, लीथल डोज 50, जिस डोज पे आधी आबादी मर जाए और जिस डोज पे आधी आबादी में वो बीमारी ठीक हो जाए, इस दोनों रेशियो को बोलते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स, और इसका एक और नाम है थेरेप्यूटिक इंडेक्स को सेफ्टी मार्जिन भी बोलते हैं। मान लो लीथल डोज है 1 है और इफेक्टिव डोज, लीथल डोज 100 है और इफेक्टिव डोज 1 है, तो दोनों का रेशियो कितना हुआ, 100 हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 1 100 हुआ। कहने का मतलब है उस ड्रग को आप 100 गुना तक बढ़ा के दे सकते हो, 100 गुना तक बढ़ाएंगे तब जाकर डेथ होगी, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक बढ़ाएंगे ड्रग का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा ये फिगर होगा, रेशियो होगा, इस रेशियो को सेफ्टी रेशियो, सेफ्टी मार्जिन बोलते हैं या थेरेप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। जिस ड्रग का ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो ड्रग उतना ज्यादा सेफ होगा। अब तो कहोगे सर ये 50% में स्टडी किया है ना पॉपुलेशन में, 100% का तो डेटा है नहीं। बात सही है, 100% का नहीं है। हम 2 रोटी में मेरा भूख मिट जाए, किसी और का भी मिट जाए, जरूरी नहीं है। तो फिर साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं नहीं, ये 100 तो एब्सोल्यूट रीच करना बायोलॉजिकल सिस्टम में मुश्किल है, तो फिर बढ़ाया कि नहीं, लीथल डोज जो है बढ़ाइए, कम कीजिए। लीथल सबसे अच्छा क्या होगा कि लीथल डोज 0 या लीथल डोज 1 कीजिए और इफेक्टिव डोज 99 कीजिए, ED 99। जिस डोज पे 99% आबादी में बीमारी ठीक हो जाए और 1 ही % में डेथ हो, ये रेशियो और अच्छा होगा ना। इस टाइप का एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जो डेटा LD1 बाई ED 99 या LD2 बाई ED 98 या फिर LD25 बाई ED 75, ऐसे रेशियोज को बोलते हैं थेरेप्यूटिक रेशियो। ये सारे रेशियोज जो हैं मोर बेटर रिजल्ट्स ऑफ सेफ्टी देते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करना नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। इसीलिए थेरेप्यूटिक इंडेक्स ये मोस्ट एक्सेप्टेड फिगर है और सारे बुक्स में आपको
अगर किसी ड्रग का पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल देखना है कि सेफ है या नहीं, तो पूछिए उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कितना है, 1 है, 2 है, 10 है, 5 है। अगर किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स 2 है तो डॉक्टर जितना डोज लिखता भूल के भी बढ़ाना नहीं उसको। अगर दुगना लिया तो साफ होने की संभावना है। लेकिन बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स इवन 1000 से भी ज्यादा है, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। तो उनका 10 गुना भी डोज लोगे, 100 टाइम्स भी डोज लोगे तो कोई डेथ वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो सारे वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग्स हैं। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है ड्रग की सेफ्टी को डिनोट करता है। इसको और फर्दर इलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, और एक और क्लास में इसको कंक्लूड करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कल अभी कुछ और एस्पेक्ट्स फार्माकोडायनामिक्स में बचे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, जो डाउट है, अगर किसी को भी डाउट है तो वी कैन टेक अप वन क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। यस, ग्राफ हमने पढ़ा था एगोनिस्ट में और इनवर्स एगोनिस्ट में, उसमें ग्राफ का कुछ इंटरसेप्ट पहले से क्यों है, 0 से क्यों नहीं वो ग्राफ शुरू है? नहीं समझा, फिर से बोलो। सर जो ग्राफ हमने देखा था ना एगोनिस्ट वाला एंटागोनिस्ट वाला अच्छा, जो था, ओके ओके, हाँ उसमें कुछ इंटरसेप्ट से शुरू हो रहा है सर ग्राफ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो शुरुआत में कैसे कुछ इफेक्ट आ रहा है, एक उसे 0 सेकंड, से शुरू होना चाहिए। एक सेकंड, इसको बोल रहे हो ना, इसी को ना कि ये 0 से शुरू नहीं हो, इसको सर ये शुरू में रिस्पांस कैसे है? इस ग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं। सर यस सर। ओके, एक हाइपोथेसिस है जिसके आधार पे आपको बताया जा रहा है कि अगर 0 से करेंगे तो इधर नेगेटिव दिखाना होगा। आप इस फिगर को 0 रख सकते हैं, इसको -50 कर लीजिए, इसको -100 कर लीजिए, ठीक है। जिस मैंने गुडमैन गिलमैन की बुक से ली है इसको, तो कोई इशू नहीं है। इट इज अ रिलेटिव, ये आर्बिट्रेरी यूनिट्स हैं, कोई फाइनल एक्चुअल फिगर्स नहीं है। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को हाइपोथेसाइज समझाने के लिए 0 से स्टार्ट किया है इसको अगर 0 कर सकते हैं कोई इशू नहीं है। इसको 0 कर लो, इसको कर लो 50 कर लो, इसको 100 कर लो, इसको -50, इसको -100 कर लो, कर सकते हैं। जस्ट हाइपोथेसिस है, चीजों को समझाने के लिए। धरती पे खड़ा हो 1 मीटर लें, छत पे जाके लें तो नीचे वाला माइनस करना होगा ना लेंथ को, कोई इशू नहीं है उसमें। मुझे और लगा कोई था कि डाउट? पहले स्टार्टिंग में लेवल में क्यों है नहीं, रिस्पांस। ये इट वाज अ हाइपोथेसिस, चीजों को समझाने के लिए हाइपोथेसिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सेम है। हाँ, और कुछ? चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, और टाइम का तो ऑब्वियसली कंसर्न होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।